Hello, all. Welcome to a new initiative of Current Affairs for Prelims 2021 by IS Network. So, in this new series, what we'll be doing is हम पिछले एक डेढ़ साल का जो भी करंट अफेयर हैं उसका एक क्विक रिविजन करेंगे इन सम थीम्स एंड इन दिस सीरीज द फर्स्ट थीम इज प्लेसेस इन न्यूज़. सो जो भी इंपॉर्टेंट पास्ट वन एंड हाफ ईयर्स के अंदर जो प्लेसेस न्यूज़ में रही हैं, ठीक है, बी इट एट ग्लोबल लेवल और वर्ल्ड लेवल और बी इट स्पेसिफिक टू इंडिया, सारी प्लेसेस का हम एक क्विक रिविजन करेंगे. हम देखेंगे व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इवेंट हैपन एट दैट प्लेस which can be important for other aspects as well. So let's start. So we'll be taking places in news and we'll be dealing with both the places from world aspect and we'll be taking places, a look from places from India perspective. Okay, so the first place in this very सेशन इज़ सुएज कैनाल. अब सुएज कैनाल बहुत ही रिसेंट है. इट वॉज अ न्यूज़ विच केम इन द लेट मार्च ऑफ 2021. इसलिए आई हैड टेकन दिस न्यूज़ एंट्री स्पेसिफिकली एट द फर्स्ट इंस्टांस, ताकि थोड़ा सा न्यूज़ का डिस्कशन भी हो जाएगा एंड व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट अबाउट सुएज कैनाल वो भी पता लग जाएगा. तो सुएज कैनाल के अंदर हुआ क्या है कि दैट दिस सुएज कैनाल इज़ ब्लॉक्ड सिंस 23 मार्च 2021. अब इसके ब्लॉक होने का क्या रीज़न है? द रीज़न इज़ कि देर इज़ अ शिप एंड दिस शिप इज़ नेम्ड आफ्टर एवर ग्रीन, एवर गिवन नाम का एक शिप है. अब ये शिप कोई छोटा मोटा शिप नहीं है. इट्स अ शिप विच इज़ लार्जर देन 3 फुटबॉल ग्राउंड्स. अब ये शिप क्या है कि वहाँ से जा रहा था फ्रॉम सुएज कैनाल, ठीक है. हुआ क्या, ड्यू टू बैड वेदर and strong desert winds. You all know that this area is a desert. So due to bad weather and strong desert winds, what happened is that this ship got blocked in the Suez Canal, as a result of which it is seriously hitting the global trade, and almost prominent players in the world trade level are actually looking for solutions to find a way out for removing this blockade. Now, important points to remember for Suez Canal is that this is the first canal, an artificial canal, which links Mediterranean Sea with Red Sea. So we know that here is our Mediterranean Sea and here is our Red Sea. So this is our Suez Canal and it links Mediterranean Sea to Red Sea and then further towards the Indian Ocean. And from here it gives an entry towards the North Atlantic aspects also and also to the Western Europe parts. Now another thing is that it is the shortest maritime route from Europe to Asia. ये एक सबसे शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट है. कहाँ से? फ्रॉम यूरोप टू एशिया. जो एक और रूट है फ्रॉम एशिया टू यूरोप और या फिर यूरोप टू एशिया इज़ फ्रॉम द अफ्रीकन साइड, दैट इज़ द केप ऑफ गुड होप. ठीक है. और ये कहाँ है? हमारे पास सदर्न टिप है अफ्रीका की. वहाँ से जाके भी क्या है कि यू कैन connect to the Europe part from Asia, but this route takes 2 weeks more for a ship to reach to Europe from Asia as compared to the Suez Canal. So Suez Canal provides a swift entry towards the European part. Clear? Now, according to the authority which is being designated at this place, that is Suez Canal Authority, according to it, almost 12% of global trade passes through it. तो 12% जो वर्ल्ड का ग्लोबल ट्रेड है दैट पासेस फ्रॉम दिस रूट. सो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट फॉर वर्ल्ड ट्रेड. एंड इट हैज़ बीन सेड दैट in 2020 alone, more than 19,000 ships per year pass from this canal. ठीक है. So 2020 more than 19,000 ships have been passed. This is clear. Now if we talk about other aspects, this Suez Canal starts from the port said in the northern terminal and it ends in the southern terminal at a port called Tufik. So this is a port which is called as Tufik.
it spells like this, which is near the city of Suez. Okay, this is Tawfiq Port. So this is Tawfiq Port, the southern terminal, and Port Said is the northern terminal. Now, another thing which you need to remember now, since it is in news, the Suez Canal, is this key. Now you can look at the picture from a satellite image. So this was the blockade of this ship called Ever Given, and it is more larger than 3 football ground. The other information which is important for Suez Canal is that this Suez Canal was, in its initial days, was under the jurisdiction of 2 countries, that is UK and France. However, later what happened is after 1956, ठीक है, so 1956 तक तो हमारे पास सुएज कैनाल किसके पास था, यूके एंड फ्रांस के जुरिस्डिक्शन में था. बट आफ्टर 1956 when president of Egypt actually nationalized it, ठीक है, what he did was he nationalized the Suez Canal, and it was then being operated and maintained. It was then being operated and maintained by Suez Canal Authority, which is under the jurisdiction of Egypt, and it is a very important aspect for revenue for the Egypt as a country. ठीक है, I hope this is clear. So it nationalized it. अब इसकी एक altogether different history है, which you will read in depth in world history. World history में there is a separate topic on this. So there are series of events which were responsible for the authority or getting the jurisdiction of the Suez Canal. So I hope this is clear. तो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच यू नीड टू नो अबाउट सुएज कैनाल, दैट सुएज कैनाल कहाँ आता है, किस किस को लिंक करता है, इसके 2 टर्मिनल कौन कौन से हैं. ऑल्सो एट द सेम टाइम you need to remember कि it is an easiest route for one to transfer from Asia towards Europe. Now, the second entry in the series is Strait of Hormuz. So, Strait of Hormuz is in news because recently Hormuz Peace Initiative was held in Iran. So, Hormuz Peace Initiative हुआ है recently, कहाँ पे, ईरान में. Other countries, other major players who participated in this initiative were Oman, India, China and Afghanistan. So in prelims, the examiner can ask question, what are the important countries or what are the countries who participated in the Hormuz Peace Initiative? So these are the 4 important countries who participated in the Hormuz Peace Initiative. अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, so its location is here. So this is Strait of Hormuz. अब स्ट्रेट क्या होता है? अब स्ट्रेट अगर एक जोग्राफिकल टर्म है, और स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, अ नैरो channel of water which separates 2 larger land masses. So this is a simple definition of strait. You will remember it. So here is the Strait of Hormuz, and it separates these 2 larger land masses. One is of the southern peninsula, Saudi peninsula, and one is of the Iran. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि इट सेपरेट्स ईरान एंड ओमान. हमारा ईरान यहाँ पर आ गया, ठीक है, ओमान हमारा यहाँ पर है. देन एट द सेम टाइम इट लिंक्स दिस पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान एंड सब्सिक्वेंटली विद आवर अरेबियन सी ऑफ इंडियन ओशन. ठीक है, नाउ इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट. अब चोक पॉइंट क्या होता है? चोक पॉइंट इज अ पॉइंट और अ रीजन विच इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड ट्रैफिक and world trade that if someone closes it and someone blocks it, it will be a disruptor for that particular country. ठीक है, तो यहाँ पर चोक पॉइंट की तरह एक्ट करता है दिस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज. अब इसका एग्जांपल अगर देखें हम, तो मोर देन 2/3 ऑफ द ऑयल एंड हाफ ऑफ द लिक्विफाइड नेचुरल गैस विच इंडिया इम्पोर्ट्स कम डायरेक्टली फ्रॉम दिस स्ट्रेट. ठीक है, तो जो भी शिप्स आते हैं सब आते हैं यहाँ से ही होके हमारे पास इंडिया के अंदर आते हैं फ्रॉम आवर वेस्टर्न पोर्ट. फिर वहाँ पर बहुत सारे हमारे रिफाइनरीज हैं, अदर प्लेसेस हैं जहाँ पर ये सब डिडॉक होते हैं. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट इन आवर वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस इज दिस स्ट्रेट ऑफ मलक्का. सो वी हैव ऑल्सो कवर्ड स्ट्रेट ऑफ मलक्का अकॉर्डिंगली. सो दिस स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज बिटवीन मलेशिया on the northern part and Singapore on the southern part. So it separates Malaysia from Singapore, and
It is also very important, and these two forms the two world's most important strategically important choke points. तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज हो गया, स्टेट ऑफ मलक्का भी हो गया, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट. थर्ड एंट्री अगर इसमें देखें तो थर्ड एंट्री विच वॉज इन न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड परस्पेक्टिव वॉज थ्वाइट्स ग्लेशियर. अब थ्वाइट्स ग्लेशियर न्यूज़ में क्यों था हम देखते हैं. रिसेंटली एक स्टडी हुई थी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी देर इज अ प्रेजेंस ऑफ वार्म वाटर बीनीथ इट. ठीक है, तो जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज एंटार्क्टिका, और यहाँ पर क्या है कि एंटार्क्टिका के इस जगह पे यहाँ पर थ्वाइट्स ग्लेशियर विच इज़ वेरी बिग इन साइज. ठीक है, एंड इट इज़ फाउंड दैट बीनीथ दिस देर इज प्रेजेंस ऑफ वार्म वाटर. ठीक है, एंड विच इज़ टू एन एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फास्टर मेल्टिंग. ठीक है, तो हमारे पास ये एंटार्क्टिका है, दिस इज ऑन द वेस्टर्न एंटार्क्टिका रीजन, वी हैव दिस प्रेजेंस ऑफ थ्वाइट्स ग्लेशियर. Clear? Now, if you talk about important points with respect to this glacier, it is 120 kilometer wide in Antarctica. It is so much huge that it can raise the world sea level by half a meter. अगर ये पूरा का पूरा पिघल जाता है, then it can seriously raise the sea level of the world by half meter. ठीक है, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, इसकी जो मेल्टिंग है, it has already contributed 4% to the global सी लेवल राइज ईच ईयर. तो हर साल 4% जो ग्लोबल सी लेवल राइज के अंदर होता है, दैट इज बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय दिस थ्वाइट्स ग्लेशियर. ठीक है, एंड दिस मेल्टिंग हैज बीन डबल्ड इन द लास्ट 30 ईयर्स. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस ग्लेशियर इज कॉमनली नोन एज डूम्सडे ग्लेशियर, विच जिसको उर्दू में बोलते हैं कयामत. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डूम्सडे ग्लेशियर, the day on which the world will be seeing a catastrophic end. So it is a doomsday glacier because it is so much important to slow the ice which is at the backside of this glacier, जो कि अंटार्कटिका के कोर में है. अगर ये ग्लेशियर यहाँ से जाएगा, it will increase the sea level rise. At the same time, it will also allow the ice which is behind it to melt faster. So this is entry number 3. Now entry number 4 is our दियामर भाषा डैम. दियामर भाषा डैम, सो इट्स अ डैम इन न्यूज़. अब ये डैम क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज रिसेंटली पाकिस्तान साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद चाइनाज स्ट्रेट रन पावर फर्म फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट. ठीक है, तो दियामर भाषा डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए पाकिस्तान रिसेंटली अभी चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है. अब दियामर भाषा डैम की लोकेशन देखते हैं. सो डैम साइट ऑफ दियामर भाषा इज लोकेटेड इन द गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन. ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन द गिलगित बाल्टिस्तान रीजन, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंटली लोकेटेड ऑन विच रिवर? इट इज़ लोकेटेड ऑन द इंडस रिवर. So these statements can come in the prelims exam. ठीक है, and it is situated near a place called Bhasha, and therefore it got its name called Diamar Bhasha Dam. I hope it is clear. Now the capacity which is being propounded is around 4500 megawatt. Accordingly, it is the tallest roller compact concrete dam in the world. ठीक है, the RCC which we usually use in the famous parlance, RCC का बना हुआ है ये, and it is the tallest in the world of RCC. Remember it. So इंडस रिवर पे है. इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना आर मेकिंग इट इन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस. कौन से रीजन में पड़ता है? गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन. ठीक है, अब एक और इस पे इशू क्या आ रहा है कि इंडिया इज अपोजिंग द मूव. ठीक है, इंडिया जो है इज अपोजिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस मूव बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडिया इट सेज कि जो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है इज अ पार्ट ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, वी ऑल नो दैट गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन जो है, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर अर्स्टवाइल, जो पहले का हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर स्टेट, उसका पार्ट है, एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, एंड देयरफॉर पाकिस्तान हैज़ इलीगली एक्वायर्ड दिस प्लेस, एंड देयरफॉर इंडिया ऑब्जेक्टेड दिस मूव ऑफ पाकिस्तान टू build a dam over this river. So this is important entry. You can use it as an example in your mains under international affairs questions. The fifth entry is Ambarnaya River. So the Ambarnaya River is in Russia. अब यहाँ पर हुआ क्या कि Russia declared a state of emergency. Russia declared a state of emergency after a power plant fuel leak in the Arctic region, which is causing 20,000 tons of diesel oil to escape in a local river, turning its color to crimson red. अब जो लोकल रिवर थी इसका ही नाम क्या? अंबरनाया. अब हुआ क्या, ये जो अंबरनाया रिवर है
ठीक है, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ रिवर्स, ठीक है, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ नेटवर्क रिवर्स एंड दीज रिवर्स टुगेदर ड्रेन वेयर इन द इकोलॉजिकली सेंसिटिव आर्कटिक जोन और आर्कटिक रीजन. अब हुआ क्या, वहाँ पर एक पावर प्लांट था जिसका नाम क्या था हमारे पास, नॉर्लिक, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, बट इट्स नेम वॉज नॉर्डिस्क. अब ये जो पावर प्लांट था, इट वॉज लोकेटेड ऑन अ परमाफ्रॉस्ट रीजन के ऊपर ही लोकेटेड था. बट नाउ वी ऑल नो दैट ड्यू टू climate change and global warming, this permafrost region starts to melt, and as a result of which this power plant got weakened, leading to leakage of fuel. And nearby Ambarnaya river passes through it, and it is draining as a network of rivers into the Arctic zone, and therefore a state of emergency need to be declared by the Russian government. So this was entry number 5th. Moving on, the entry number 6th is we have Death Valley. अब Death Valley क्यों important है, let's see. तो Death Valley है कहाँ, पहले ये देख लेते हैं. It is in the state of California of US. तो USA के अंदर, कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर Death Valley lies. अब why it is in news, that recently it registered a temperature, and this temperature was 54.4 degrees Celsius, and according to scientists this could be the hottest temperature ever recorded on Earth. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा रिकॉर्डेड टेम्परेचर हो सकता है ऑन अर्थ. अब जो डेथ वैली है, ठीक है, दिस डेथ वैली फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द डेथ वैली नेशनल पार्क. एट द सेम टाइम दिस डेथ वैली इज नथिंग बट अ डेजर्ट वैली in eastern California in the northern Mojave Desert. ठीक है, सो इट इज़ रिटन एज मोजावे बट इट इज़ बीन प्रोनाउंस एज मोहावे डेजर्ट. ठीक है, तो यहाँ पर मोहावे डेजर्ट का रीजन है कैलिफोर्निया के अंदर, यूएस के अंदर, एंड इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इट, नदर्न पार्ट के अंदर ये डेथ वैली लाई करती है. सो इट वॉज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो यू कैन आस्क इन द एग्जाम लाइक डेथ वैली वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज लोकेटेड इन, सो यू नीड टू गिव अकॉर्डिंगली. द नेक्स्ट एंट्री इज बंदर अब्बास. So you already looked this map. So this Bandar Abbas is a port city and it is located very near to the strategic Strait of Hormuz, which we have already discussed, and it is a port city in the country of Iran. ठीक है, तो ईरान की एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है. अब ये न्यूज़ में क्यों थी, क्यों हमने इसको एंट्री किया है, बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन समुद्र सेतु. ठीक है, सो इंडियन नेवी का देर वॉज एन ऑपरेशन कॉल्ड समुद्र सेतु विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन समुद्र सेतु, INS शार्दुल इवैक्यूएटेड इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास इन ईरान टू पोरबंदर गुजरात. तो यहाँ से INS शार्दुल ने जो भी वहाँ पर सिटीजन्स थे, इंडियन सिटीजन्स, ठीक है, हमारे सारे कोविड वाले टाइम्स के अंदर, तो जिस तरीके से हम उनको इवैक्यूएशन प्रोसेस कर रहे थे, तो अकॉर्डिंगली समुद्र सेतु ऑपरेशन के अंतर्गत INS शार्दुल ने दे बॉट द इंडियन सिटीजन्स बैक टू द पोरबंदर गुजरात एरिया. नाउ अकॉर्डिंगली इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बंदर अब्बास क्या है, जैसे हमने देखा इट्स अ पोर्ट सिटी. ठीक है, तो बंदर अब्बास क्या हो जाएगी, हमारी पोर्ट सिटी हो जाएगी. एट द सेम टाइम इट इज़ लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ईरान, ये हमने देख लिया है, ऑन द पर्शियन गल्फ एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक स्टेट ऑफ हार्मोज. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इट इज़ अ मेन बेस ऑफ Iranian Navy. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो लोकेशन पता लग गई कहाँ पर है, क्या वहाँ पर रिसेंटली करंट अफेयर का इवेंट हुआ है वो हमें पता लग गया है. ठीक है, सो दीज ऑल वी विल नॉट बी कवरिंग इन द इंटरनेशनल रिलेशंस बिकॉज वी आर टेकिंग दैम अंडर प्लेसेज इन न्यूज़. सो नेक्स्ट इन द सीरीज इज चैलेंजर्स डीप. अब चैलेंजर्स डीप के अंदर हम देखते हैं क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज ऑफ फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट कैथी सुलिवान, ठीक है, बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रीच देयर. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन टू कंप्लीट अ स्पेस वॉक 36 years ago. ठीक है, तो शी इज़ अ ब्रिलियंट लेडी, नो डाउट अबाउट इट. सो कहाँ पर है ये चैलेंजर्स डीप. अब जो चैलेंजर्स डीप की बात करते हैं, तो चैलेंजर्स डीप कहाँ पड़ता है हमारे पास, इट इज़ इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन. वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर क्या मिलता है हमारे पास, चैलेंजर्स डीप. ठीक है, ये क्लियर है.
नाउ अकॉर्डिंग टू नेशनल ओशन एजेंसी, ठीक है, जो ओशन की एवरेज डेप्थ है, ओशन की एवरेज डेप्थ है दैट इज अराउंड 12,000 feet. However, this Challenger Deep is around 36,000 feet deep. So this is something you should know. At the same time, हमें पता है ये Challenger Deep क्या है? It is nothing but what we call in our geographical language a trench. ठीक है, ये क्या है? हमारे पास एक ट्रेंच है. अब ट्रेंच क्या होता है? When two plates, ठीक है, कोलाइड एंड वन हैवियर प्लेट सबडक्ट्स बीनीथ द अदर, ठीक है, तो ये हो सकता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये क्या हमारे पास ओशनिक क्रस्ट है, एंड वन दिस ओशनिक क्रस्ट वी ऑल नो इट इज़ मच मोर डेंसर, देयरफॉर इट सबडक्ट्स, और जब सबडक्शन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जोन ऑफ सबडक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बन जाता है हमारे पास ट्रेंचेस, एंड दिस ट्रेंच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड कॉल्ड एज चैलेंजर्स डीप. कहाँ पर है? वेस्ट पैसिफिक ओशन में. क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिया है. नेक्स्ट इज द ओकावांगू डेल्टा. This is the 9th entry. So why it was important? Because Caracas, ठीक है, of more than 400 elephants have been discovered in the North Okavango Delta in Botswana. So कहाँ की घटना है ये? This is from Botswana country in South Africa, in the African continent. कहाँ पर है? ओकावांगू डेल्टा में क्या मिला है? 400 एलिफेंट्स का डेथ का डिस्कवरी हुई है वहाँ पे रिसेंटली. अब क्या रीजंस हैं? इसके रीजंस आर स्टिल अननोन टू द साइंटिस्ट, ठीक है. दे टर्म इट एज एन एनिग्मेटिक इवेंट. एनिग्मेटिक इवेंट का मतलब क्या होता है? एन इवेंट ऑफ हुज रियल रीजन इज नॉट नोन. तो अभी दे आर स्टिल नॉट कन्फर्म व्हाट वाज द रीजन, ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके लिए? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इट बिकेम ओकावांगू डेल्टा बिकेम द 100,000 साइट टू बी ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ठीक है. सो इट वॉज द 1000th site which was being listed in the UNESCO World Heritage List. At the same time, जो ओकावांगू डेल्टा है, it's nothing but a swampy inland delta, ठीक है. Inland delta means the river Okavango is not draining into any sea like Arabian Sea or Atlantic Ocean, but it is an inland sea and therefore it is forming an inland delta. Clear? And it is at the northern end of Kalahari Desert, which is a famous desert here. Kalahari Desert, ठीक है. And this swamps are biologically very important because a number of biodiversity exist here. Like there is increasing population of elephants, of hippos, of rhinos are found in this place. And the last entry of the day is भाषण चार, ठीक है. अब भाषण चार जो एंट्री है, वाई इट वॉज इंपॉर्टेंट न्यूज़? बिकॉज रिसेंटली ह्यूमन राइट्स वॉच एन ऑर्गेनाइजेशन आस्क्ड बांग्लादेश गवर्नमेंट टू ट्रांसफर 300 स्ट्रैंडेड रोहिंग्या रेफ्यूजीज टू मेनलैंड बांग्लादेश फ्रॉम भाषण चार आइलैंड. तो हुआ क्या था, ठीक है, ड्यू टू कंसर्न्स ऑफ कोविड, कुछ रोहिंग्या रेफ्यूजीज अराउंड 300 इन नंबर, उनको यहाँ पर क्या किया था? क्वारंटाइन किया गया था. कहाँ पर? भाषण चार आइलैंड में, ठीक है, क्वारंटाइन किया गया था भाषण चार आइलैंड में. नाउ ह्यूमन राइट्स वॉच कमीशन टोल्ड बांग्लादेश गवर्नमेंट टू ट्रांसफर बैक देम टू द मेनलैंड बांग्लादेश. तो उनको बोला है कि यहाँ से इनको वापस मेनलैंड बांग्लादेश में ट्रांसफ़र करो. द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेसेस इज अराउंड 30 किलोमीटर. नाउ दिस भाषण चार island is also important because it is a very small flood prone island. Or recently, according to Bangladesh government, what they have decided is they decided that to transfer around 1 lakh Rohingya refugees 1 lakh Rohingya refugees from mainland Bangladesh to Bhashan Char island. अब ये एक स्मॉल आइलैंड है दैट इज़ फ्लड प्रोन. तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी ह्यूमन राइट्स एजेंसीज हैं विच आर एक्चुअली highlighting the worst situation which can prevail in this Bhashan Char island once this 1 lakh Rohingya refugees and Muslims will be transferred to this island. ठीक है, they are saying that it is quite inhabitable. At the same time, they are saying that it is prone to cyclonic storms, very prone to cyclonic storms and huge tidal
surges can actually wash and submerge large parts of this island. Okay, so there are various concerns being highlighted by different human rights agencies. So this was the first video in the series of places in news. We'll be covering 4 or 5 videos which will be covering all the important places to be asked in prelims, and you need to do all this. No need to do anything else after watching this video. So these are the places which needs to be remembered for prelims 2021. If you have any suggestion, just write in the comment, subscribe, and do share your views in the comment section. Thank you and have a nice day.